Hello student, welcome back to your own channel Simplified Chemistry. In today's session, we are going to discuss the NEET 2019 paper of chemistry. And once again, welcome all of you. And please join the session fast. We are waiting for other students to join. Quickly join the session, students. Then we will start. So in this session, we will solve the whole concepts of 2019 questions. Not only questions, but we will see with that certain concept that why this answer is coming and why this option is wrong and all that things will clear in this particular paper. Okay, still we are waiting for 10 to 15 seconds for other students to join. Okay, welcome everyone. Welcome to your own channel Simplified Chemistry. Okay students, so now let us start. Let us start with our session. So here is your first question. The most suitable reagent for the following conversion is. ये conversion के लिए the most suitable reagent कौन सा है? So you can simply say that here triple bond is there and here double bond is there. So triple bond to double bond. Triple bond to double bond. So here you can say that four options are given to ZnHCl, Hg+2, Na liquid, NH3, H2PD. So metal plus H2 reduction, this is clear, the plus H2. So this bond will break, one hydrogen will attach to this, other will attach to this carbon. Clear, this is of organic chemistry and our answer will be H2PD plus charcoal. Clear, this is in the preparation of alkene only. And this PD plus C is known as what? Lindlar's catalyst, student. It is known as what? Lindlar's catalyst, and we are familiar with that. Clear? So we do not have to worry about that. So the answer will be A, student. Is it clear? Okay. Let's start the another question. So in this question, they have asked the correct structure of tribromo octa oxide. Tribromo octa oxide. Student, ये कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इसको हमने रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर देखा था. इसको हमने देखा था रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर. तो आपको पता है कैसा स्ट्रक्चर होगा. तो Br डबल बॉन्ड O सारे डबल बॉन्ड आने वाले हैं. क्लियर. हमने इधर इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए इसको डिस्कस किया था. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए. ये जो Br है, सेंटर वाला Br है, इट इज सराउंडेड बाय 2 Br, सो इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल बी कंसीडर एज 0. ऐसा आपको याद हो तो ऐसा हमने किया था. ठीक है, तो इसका ये स्ट्रक्चर होगा. तो हम देखने जाए तो ऐसा स्ट्रक्चर D में है. तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा बच्चों. क्लियर? क्या होगा? ट्राइब्रोमो octa oxide. Clear? Okay, this is also simple one. Now let us move towards the next question. So the next question is from electrochemistry. For a cell involving one electrode, E0 cell, 0.59 volt at 298 Kelvin, the equilibrium constant for the cell reaction is. Equilibrium constant for the cell reaction is. It means here we have to find out what equilibrium constant. E naught cell is given to you, student, that is 0.59 volt. E naught cell is given to you, that is 0.59 volt, and here we have to find out here that log K, it means equilibrium constant, KEQ we have to find out. Clear? So for the cell reaction, this is given 2.003 RT by F is given to us. Clear? So what will be our answer? So what will be our answer? So you know that E cell is equal to E naught cell minus 0.059 by N into log K. Into log K. Is it clear? Okay, understood. So now you know that whenever equilibrium constant will come, so at that time you can say that E cell will be 0. So 0 is equal to E naught cell minus 0.059 by N into log K.
So we are familiar with the formula that log K, we have already derived this formula, that E naught cell into N upon 0.059. This is our formula. Clear? Okay, so E naught cell is given to us, that is 0.59. Now how to find out the N? So here it is written in the value that 1 electron involving 1 electron, it means change in electron is 1, and upon 0.059. Upon what? 0.059. So it will be 10. So you can simply say that your answer will be log K is equal to 10. But K is equal to what? Anti-log. So 10. So anti-log of 10.0. So you can say that simply 10 raised to 10. 10 raised to 10. Clear? So answer will be 10 raised to 10. So here this B option will be correct. 10 raised to 10. Is it clear, student? Okay, student. So now we will move towards the next question. That is the question number 4. The structure of intermediate A in the following reaction is. So first one is CH3CH3. We are doing the reaction with the O2. So student, we all are familiar with this reaction, and that we have already discussed this reaction. Okay, in a cumene process. If we'll do the reaction with the O2, what will happen here? Peroxide bond will form. Okay, I will write here CH3, other CH3, and OOH. This bond is considered as what? Peroxide. This peroxide linkage this is. And हमने ये क्यूमीन का प्रिपरेशन, क्यूमिन प्रिपरेशन से आपको फिनॉल का प्रिपरेशन में हमने देखा था. एंड अभी इसका आगे रिएक्शन करेंगे डायल्यूट H2SO4. इट मींस इधर दिया है H+H2O, तो क्या मिलता है? फिनॉल एंड एसीटोन मिलता है. तो बच्चों ये पता है हमें, तो ये कंपाउंड मिलता है. इट मींस हमारा ये आएगा आंसर ए. इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी रहेगा. ठीक है, ओके, चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. The number of moles of hydrogen molecule required to produce 20 moles of ammonia through Haber's process. तो Haber's process आपको पता है, N2 plus 3H2 2NH3. अगर आप सिंपल कह सकते हो 3 मोल हाइड्रोजन के होंगे तो वो 2 मोल अमोनिया बनाते हैं. तो आपको कितने मोल अमोनिया बनाना है? 20 मोल अमोनिया बनाना है. तो भाई 20 मोल के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? 20 into 3 डिवाइड बाय 2, सो इट विल बी 30 मोल चाहिए. बहुत ही आसान है, तो आंसर आएगा अपना बी, 30 मोल. क्लियर? लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड अमंग द फॉलोइंग इज. नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, तो आपको पता है एलेनाइन हमारा नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है. तो बच्चों 11 नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स है. मैं इधर लिखता हूं, आप याद रखना, उसकी नोट बना देना. ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए. एलेनाइन है, फिर आर्जेनिन है, फिर आप कह सकते हो एस्पारेजिन है. ठीक है, फिर आप देख सकते हो एस्पार्टिक एसिड, फिर साइटीन, फिर होता है ग्लूटामिक एसिड, फिर होता है ग्लूटामाइन, फिर होता है ग्लूटामाइन. ग्लूटामाइन के बाद आता है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के बाद आता है प्रोलिन, प्रोलिन के बाद आता है सेरिन. क्लियर? एंड सेरिन के बाद आता है टायरोसिन. ये सारे जो है बच्चों मैंने लिखे इधर, वो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है. इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बहुत ही आसान रहेगा सॉल्व करने के लिए. ठीक है बच्चों, चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अ गैस एट 350 केल्विन एंड 15 बार. ध्यान से देख लेना, 350 केल्विन एंड 15 बार हैज मोलर वॉल्यूम 20% स्मॉलर. बहुत ध्यान से देख लेना, 20% स्मॉलर देन दैट फॉर एन आइडियल गैस अंडर द सेम कंडीशन. अंडर द सेम कंडीशन इट मीन्स V रियल एंड V आइडियल दो होते हैं, हमें पता है.
एंड z इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है v रियल अपॉन v आइडियल, हमने स्टेट ऑफ मैटर में देखा था। अभी इधर क्या है, तो आप कह सकते हो रियल जो वॉल्यूम है दैट इज लेस देन v आइडियल। इट मीन्स आप कह सकते हो ऐसा कंडीशन कब आएगा, z लेस देन 1 होगा तब आएगा। अब आराम से कह सकते हो ऐसा कंडीशन कब आएगा, जब z लेस देन 1 होगा तब जाके ऐसा कंडीशन आने वाला है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट अमंग द गैसियस मॉलिक्यूल एंड लिक्विफैक्शन ऑफ गैस विल बी इजी व्हेन z लेस देन 1। आपको पता है लिक्विफैक्शन ऑफ गैस विल बी वेरी वेरी इजी, क्लियर, ओके, एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन है z लेस देन 1 वाला, इधर रिपल्सिव फोर्सेस नहीं, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट होंगे तब ये होगा। तो इसलिए हम कहते हैं इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा बच्चों, क्लियर, ओके। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो बच्चों आपको पता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। तो इधर आप इसका Cu प्लस है तो +1 है, इधर +2 है तो +2, एंड इधर क्या है, इधर क्या है आप देख सकते हो CuO है, इधर क्या है CuO, ओके। तो ये CuO है तो इसका भी क्या आएगा +2। तो इधर तो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, ओके। इधर बच्चों ये गलती से इधर खाली Cu है, इधर खाली Cu है, इट मीन्स इधर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है 0। आप देख सकते हैं +1 to +2 ऑक्सीडेशन, +1 to 0 क्या हो गया रिडक्शन। अभी MnO4 2- तो इसका क्या आ गया +7, इधर Mn का क्या हो गया 4 to the इधर तो +7 ही है, इधर Mn +4 है, क्लियर। तो इधर तो खाली क्या होगा 7 to 4 रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता। इधर भी +7 है, इधर +6 है, इधर +4 है, तो 7 से 6 एंड 7 से 4 तो रिडक्शन ही हो रहा है Mn का, इट मीन्स ये भी हमारा डिसप्रपोर्शनेशन नहीं है, क्लियर, ओके। एक बार इसको देख लेते हैं MnO4-, एक बार इसको पहले क्लियर कर देते हैं MnO4-, एंड इधर जो है बच्चों थोड़ा हमने गलती कर दिया, इधर क्या दिया है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, MnO4 2-। तो इधर आप देख सकते हो Mn का +6 आता है, इधर Mn का क्या आएगा +7, एंड इधर MnO2 तो इधर क्या आएगा +4 बच्चों। तो ये क्या आएगा +6, ये आएगा +7, यस। तो ये डिसप्रपोर्शनेशन है 6 to 7 एंड 6 to 4, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था इसलिए, ठीक है। इट मीन्स A भी डिसप्रपोर्शनेशन है, B भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, C नहीं है, ओके। एंड इधर देखेंगे तो ये +7 आया, ये +2 आया, ये +4 आया, क्लियर, तो नहीं है, ये भी हमारा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, क्लियर, ओके। 7 से 4, 2 से 4 ये नहीं हो रहा है, आपको पता होना चाहिए, क्लियर। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन रिएक्टेंट में से होता है, ये सारे रिएक्टेंट, ये तो उल्टा प्रोडक्ट से हो रहा है, क्लियर। तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कंसीडर नहीं होगा, क्लियर, ओके, डन। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए भी डिसप्रपोर्शनेशन है, बी भी डिसप्रपोर्शनेशन है, तो आएगा डी हमारा ए एंड बी दोनों डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर H2E। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वेर EOSCT, ठीक है, पोलोनियम। तो इसमें सही ऑर्डर क्या आएगा थर्मल स्टेबिलिटी का। बच्चों एक क्वेश्चन ऐसा आएगा ही, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा हाइड्रेट ज्यादा स्टेबल है, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्साइड की ज्यादा है, ऐसे सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो अभी इधर याद रखना कि जैसे जैसे कोई भी ग्रुप में इधर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं हम, तब थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है, थर्मल स्टेबिलिटी H2E की डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, देन दैट इज बॉन्ड एनर्जी की वजह से, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी जो है
वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा किसकी हो सकती है, H2O की हो सकती है, फिर H2S की हो सकती है, तो H2O, H2S, H2SE, TePO। तो आंसर बनेगा बच्चों बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 4D दिया है, 5p, 5f एंड 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। द करेक्ट ऑप्शन इज डिक्रीजिंग एनर्जी। तो 4D, तो आप n+l वैल्यू से एनर्जी पता करते थे। तो 4D है, तो आपको पता है 4 प्लस आपको क्या याद है 2, तो वो क्या आएगा 6 आएगा। अगर इसकी बात करें 5p, तो 5 + 1, तो उसका भी क्या आएगा 6 आएगा। ओके, फिर 5f की बात करें तो 5 + 3, तो वो 8 आएगा। एंड 6p की बात करें तो 6 + 1, वो क्या आएगा 7 आएगा। इन शॉर्ट हमें पता है भाई 8 वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा 8, 7। क्लियर। तो पहले 8 5f कहां पे है, तो 5f दो जगह पे है। उसके बाद 6p, तो इधर भी 6p है, इधर भी 6p है। अभी दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों का n+l वैल्यू सेम है, तो जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो 5p में n की वैल्यू ज्यादा है, तो इट मीन्स हमारा ये ऑप्शन एकदम सही आएगा। आसान है, आपको पता है, हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है, बहुत बेसिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। विच विल मेक बेसिक बफर। तो बफर सॉल्यूशन कौन बनाता है, आपको पता है। बफर मीन्स पता है ना, वीक बेस, एंड वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ का सॉल्ट अपना बेसिक बफर होगा। इट मीन्स उसकी pH ग्रेटर देन 7 होगी। अभी बात करते हैं 100 ml CH3COOH एंड NaOH। तो बच्चों इधर तो क्या होगा, CH3COOH है, NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो इधर बनाता है CH3COONA एंड H2O, ये बनाता है। अभी CH3COOH आप देखो 0.1 मोलर 100 ml। इन शॉर्ट में क्या बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देख लेना। 0.1 इसके मोल फाइंड कर दो, हमेशा ऐसे क्वेश्चन है इसके मोल फाइंड करो। तो अभी मैं इधर आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूं, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल अपॉन लीटर होता है। तो मोल इज इक्वल टू क्या आएगा, मोलारिटी इंटू लीटर। अगर ml में ही रखूं तो मिली मोल कह सकता हूं, मोलारिटी इंटू ml, तो वो क्या मिलेगा मुझे, मिली मोल मिलेगा, मिली मोल। तो मिली मोल इसके 0.1 इंटू 100 फाइंड कर लेता हूं, 10 मिली मोल आएंगे इसके कितने मिली मोल आएंगे, इसके भी 10 मिली मोल आएंगे। अभी पहले 0 0 था, अभी आप सोचो 1 ही है, तो इधर भी 1 ही है, तो ये भी कितना मिली मोल मिलेगा 10। इट मीन्स ये CH3COOH तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा पूरी रिएक्शन में। इट मीन्स रिएक्शन में कुछ बचेगा नहीं, रिएक्टेंट तो बचने वाला है नहीं, खाली ये बचेगा। इट मीन ये तो खाली सॉल्ट हुआ, बफर सॉल्यूशन नहीं हुआ है। क्लियर। ओके, अभी दूसरी बात करते हैं HCl एंड NH4OH। बहुत ध्यान से देख लेना, HCl एंड NH4OH, तो वो दोनों क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे NH4Cl प्लस H2O। इसके मिलीमोल फाइंड करो, 0.1 इंटू 100, तो 10 मिलीमोल हुए। इसके 0.1 इंटू 200, तो 20 मिलीमोल हुए। अभी इधर 1 मोल तो 1 मोल के साथ ही रिएक्ट करता है, तो 10 मिलीमोल के साथ ही रिएक्ट करेगा। तो इधर बचेगा कितना, 10 मिलीमोल बचेगा मेरे बच्चों। इधर NH4OH बचेगा, इधर NH4Cl भी आपको 10 मिलीमोल मिलेगा, क्योंकि 10 HCl एंड 10 NH4OH कंबाइन होकर 10 मिलीमोल NH4Cl तो बनाने वाले हैं। इट मीन्स अभी NH4OH भी बचता है, NH4Cl भी, तो वीक बेस एंड वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ का सॉल्ट। इट मीन्स ये अपना बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाएगा। ऐसे कंसेप्ट से आपको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। समझ में आ गया, बहुत आसान है, आराम से कर लेना, बहुत आसान है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड तो बेरिलियम से दिया गया है, तो बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो भाई आयनाइजेशन एनर्जी 18 ग्रुप की तो सबसे ज्यादा होती है, तो ये फिर फ्लोरीन। फिर आपको पता है सेकेंड ग्रुप में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेप्शनल केस थे, नाइट्रोजन ज्यादा आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर कार्बन, फिर बेरिलियम, बोरॉन में भी एक्सेप्शनल केस। क्यों एक्सेप्शनल केस था, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन रिस्पॉन्सिबल है 1s2 2s2 एंड 1s2 2s2 2p1 बोरॉन का है।
अभी 2p में से इलेक्ट्रॉन आसान से निकल जाएगा, 2s फुल्ली फिल्ड है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। यही केस होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन में क्या होता है 2p3 होता है, ऑक्सीजन में 2p4 होता है। तो 2p3 हाफ फील्ड इज ऑल्सो स्टेबल वन, उसमें एनर्जी निकालने इट मीन उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसके कंपेयर में हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसकी वजह से कह सकते हैं कि हमारा ये आंसर होगा। इट मीन्स पहले नियॉन, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन एंड लिथियम। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर? तो हमारा आंसर आएगा ए। बेसिक है। ओके, अभी आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5। Two axial PCl bonds make an angle of 180 with each other। तो एक्चुअली PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा है आपको पता होना चाहिए। ये एक प्लेनर होता है, एक इसके ऊपर एक उसके नीचे। तो ये P है, इधर Cl है, Cl, ये Cl एंड ये Cl। तो हमें तो कौन सा स्टेटमेंट फाइंड करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अभी PCl बॉन्ड एक्सियल, PCl बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल, आप कह सकते हो PCl बॉन्ड आराम से। क्लियर? ओके, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो क्या आ गए अपने? सही आ गए। PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव, ये गलत बात है, खुद का डिकम्पोजिशन भी कर देता है PCl3 + Cl2। क्लियर? इट मीन ये तो रिएक्टिव है। तो भाई ये अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों। ठीक है, बहुत आराम से आप कर सकते हो। अभी PCl इक्वेटोरियल जो 120 डिग्री, हाँ तो आपको पता है ये 120 डिग्री होगा। क्लियर? ओके, बहुत आसान है, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following diatomic molecular species has only pi bonds according to molecular orbital theory? Only pi bond, only one pi bond। तो N2, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, तो N ट्रिपल बॉन्ड N आया। C2 बात करते हैं तो 12, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आया, तो C डबल बॉन्ड C, तो एक सिग्मा है, एक पाई है। आप कह सकते हो इसमें पाई है, इसमें 2 पाई है। वैसे ऑक्सीजन में देखने जाए तो वो भी डबल बॉन्ड O है, तो उसमें भी पाई है। एंड B2 में तो नहीं, ऑप्शन नहीं आएगा। तो अभी आप इसमें क्या करेंगे? C2O2, तो इन दोनों में से हमारा आंसर कौन सा आने वाला है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूलर, डायटोमिक दिया गया है, C2O2 वो तो है ही। मॉलिक्यूलर स्पीसीज ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखे, कार्बन का सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। आपको पता है? क्लियर? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर आप देख रहे हो 6, तो 12, तो वो लेस देन 14 है ना। लेस देन 14 के लिए हमने पता है देयरफॉर लगा दे, तो पाई 2px पाई 2py। देखो 2 4 6 8 10 एंड 12। तो आप देख सकते हो खाली इसमें कौन सी ऑर्बिटल देखा ना आपने। अभी O2 की बात करें तो O2 में क्या होगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अभी उसमें देयरफॉर बिकॉज ऑफ होगा 16 है ग्रेटर देन 14। क्लियर? तो सिग्मा 2pz2 पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। 2 4 6 8 10 14 एंड पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर? हैज ओनली पाई बॉन्ड। क्लियर? ओके, अभी क्वेश्चन में देखने जाए तो क्वेश्चन में थोड़ा इधर लिखने का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ओके, देख लेते हैं फिर से एक बार। मैं अपने रिसोर्सेज से वो वैल्यूज चेक कर लेता हूँ वो सही है कि नहीं है, तो क्या पता चल जाए। ओके, इन शॉर्ट एक बार मुझे चेक कर लेने दो। जस्ट वेट फॉर 2 सेकेंड स्टूडेंट। ओके 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 ओके, जस्ट अ मिनट। Which of the following diatomic molecular species has only pi bond according to the molecular orbital theory? ओके, तो
उन्होंने ये भी सही बताया कि खाली पाई बॉन्ड होंगे उसके अंदर, वो बताया। तो अभी आप देखो पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है, तो उसमें तो ये भी 2 है, इधर भी 2 है, आप कह सकते हो O2 में भी है। तो बस C2 में हमारा आंसर है बच्चों, C2 ओनली पाई बॉन्ड। दे वैल्यू तो सही है बट ओनली पाई बॉन्ड, तो इट मीन्स पाई ही BMO कह सकते हैं। इधर BMO ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ये कह सकते हैं BMO ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। इधर तो क्या हो गया, ABMO भी पार्टिसिपेट करते हैं, बट कार्बन के अंदर देखे तो क्या होगा, खाली BMO पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, आप देखोगे तो खाली क्या करेगा, BMO पार्टिसिपेट करता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ये बनता है। तो इसीलिए आप कह सकते हो ओनली पाई बॉन्ड, तो इसीलिए ये आंसर आ रहा है, इसीलिए ये आंसर आ रहा है। ठीक है, इधर तो ये भी BMO होना चाहिए, BMO पाई ऑर्बिटल ओवरलैप। ठीक है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन में मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, फिर भी मैं देख लूंगा, बाकी मुझे थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है ऐसा लग रहा है। ठीक है, वैसे तो उसमें भी सही है, बट ये लॉजिक से इसका आंसर C2 आ सकता है, बिकॉज पाई BMO है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, ये इसमें क्या है, पाई एंटी बॉन्डिंग है, तो पाई BMO, तो उसके हिसाब से पाई बॉन्ड पाई BMO अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ऐसा होगा, पाई BMO होगा। ठीक है, पाई बॉन्ड की जगह पे, तो ये आंसर आ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेंट 2 इन 4 तो पहले वर्ड रूट पकड़ो, 1 2 3 4 5, पेंट 2 इन 4 2 इन एंड 4 पे 1 2 3 एंड 4 पे आइन। आप देख सकते हो H, इसका वैलेंसी कंप्लीट 1 1 एंड इधर 3, तो सिग्मा पार्ट देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 10 10 सिग्मा एंड 2 पाई इसके और 1 पाई इसका, 3 पाई। अपना D ऑप्शन रेडी बैठा है, 10 सिग्मा 3 पाई, तो अपना आंसर आएगा ये। बहुत आसान है बच्चों, क्लियर, आराम से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अमंग द फॉलोइंग द वन दैट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा C, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। तो ये थियोरेटिकल है, केमिस्ट्री एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, तो आपको पता है आइसोथर्मल इट मींस डेल्टा T इज इक्वल टू 0, अ गैस एट 300 Kelvin expands from 0.1 liter to 0.25 liter। V1 दिया है 0.1 लीटर, V2 दिया है 0.25 लीटर एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, द P एक्सटर्नल प्रेशर दिया है 2 बार, द वर्क डन बाय द गैस, द W irreversible process is equal to minus P delta V minus P V2 minus V1, so P is given 2 and V2 is 0.25 minus 0.1, and if you will solve this here, so you can simply say that 0.25 minus 0.1, so all over answer will be minus 0.30 liter into bar. Here it is given 1 liter bar is equal to 100 joule, so multiply with the 100, so is equal to minus 0.30 into 100 joule is equal to minus 30 joule. Answer will be what, minus 30 joule. तो D, थर्मोडायनेमिक्स बेसिक क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट की एग्जाम में, तो आपने ओनली एंड ओनली NCERT पे भी फोकस किया है प्रॉपरली। ओके, तो आप आराम से कर पाओगे, नीट का लेवल बहुत इजी होता है बच्चों। ठीक है, चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन इज मैलेकाइट फ्रॉम द फॉलोइंग, आपने देखा JEE में भी ये पूछा गया था, तो आपको पता है इसमें से क्या आएगा, CuCO3 इंटू CuOH2 को मैलेकाइट कहते हैं। सिंपल है, तो इसमें कुछ टाइम बिगाड़ते नहीं, आगे निकलते हैं। ओके, चलिए फिर देखते हैं। द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो आपको पता है जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बताते हैं। क्लियर,
इज इट क्लियर? जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, तो इधर नेगेटिव डेविएशन कौन दिखाता है? वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। ओके, तो ये क्या आएगा अपना आंसर? वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। हमारा हेप्टेन ऑक्टेन तो आइडियल हो गया, ये दोनों पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल हो गए। तो बच्चा ये वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड नेगेटिव डेविएशन दिखाता है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज, आप ही मुझे बता सकते हो इसमें फटाफट। नायलॉन 6 नहीं है, ब्यूना एस नहीं है, नायलॉन 6 नहीं है, नायलॉन 2 नायलॉन 6 है, बेसिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशंस in the spectrum of hydrogen atom fall in visible region? Lyman, Balmer, Paschen, bracket, Fund. Lyman, Balmer, Paschen, bracket and Fund. P Fund. आप कह सकते हो बामर सीरीज विजिबल रीजन में आता है। ओके, तो अपना आंसर क्या आएगा? ए, बामर सीरीज। ये भी थियोरेटिकल है। ओके, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, तो बच्चों आइडियल सॉल्यूशन होता है तो उसमें डेल्टा एच मिक्सचर क्या आ जाता है? 0 आता है। हमेशा याद रखना, डेल्टा एस मिक्सचर हमेशा याद ही रखना। ये ग्रेटर, मैंने ऑलरेडी आपको थियरी में समझाया, डेल्टा जी लेस देन 0 होगा एंड डेल्टा वी मिक्सचर भी 0 होगा। ये आप याद ही रखो, याद ही रखो। अभी ऐसा कैसा कौन सा ऑप्शन है? डेल्टा वी मिक्सचर नॉट इज इक्वल टू 0, गलत है। डेल्टा एच मिक्सचर 0 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यस। डेल्टा जी 0 नहीं हो सकता, डेल्टा एस भी 0, तो बी ऑप्शन। ये मेरी बात हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया। कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड? एम्फोटेरिक तो कैल्शियम, जनरली हमने देखा है मेटल जो होता है सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन है, एस ब्लॉक एलिमेंट बोला ना, हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड वाला क्वेश्चन आएगा। ओके, तो इसमें आता है बी। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम है, बट बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, इसलिए उसको एम्फोटेरिक माना गया है। तो आंसर आएगा BOH ट्वाइस। BOH twice will be our answer, student. Is it clear? Let's move towards the next question. If the rate constant for the first order reaction is K, the time T required for the completion of 99% reaction. Okay, first order है तो K is equal to 2.303 by T into log R0 upon RT. Student, we are familiar with this. T को सब्जेक्ट बनाना है तो 2.303 by K into log, पहले 100 था, 99% कंप्लीशन, इट मीन 100 माइनस 99 बचा 1। तो क्या करेंगे? 2.303 by K into log 100। अभी इधर देखो 2.303 by K into log 10⁻² कर सकता हूँ 100 को। अभी इसका log फाइंड करने जाओगे तो क्या आएगा? 2.303 by K into 2 बराबर, तो 2.303 by K into 2, इट मीन्स क्या आएगा? 4.606 by K। ना आंसर आ गया, ये भी आ गया 4.606 by K। सिंपल, तो इसका टाइम को ऐसे दिखा सकते हैं, बहुत ही सिंपल केमिकल काइनेटिक्स। ओके, कॉन्जुगेट बेस फॉर ब्रोंस्टेड एसिड H2 and HF। तो मैंने आपको बताया है कॉन्जुगेट बेस फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? H+ रिमूव करना पड़ेगा, H+ रिमूव करना पड़ेगा। कॉन्जुगेट एसिड फाइंड करना हो तो H+ ऐड करते हैं, इधर H+ रिमूव करते हैं तो H2O में से एक H+ बोलिए निकलेगा तो बचेगा क्या? OH-। तो OH- उसका क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस होगा। HF में से H+ निकालो तो बचेगा क्या? F-। तो F- उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। इक्विलिब्रियम में बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ा था, OH- and F-। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इक्विलिब्रियम। ये रिएक्शन आपके फेमिलियर है, बहुत ही फेमिलियर रिएक्शन है। ओके, फिर से बता देता हूँ, फिर आपको मुझे बताना है कौन सा रिएक्शन है। तो ये COOH है, इधर भी COOH है। आपको पता है NH3 के साथ क्या होता है? तो NH3 के साथ इधर को पता है COO- NH4+, एंड इधर क्या होता है? COO- NH4+। इसको आप हीट करते हो तो जनरली क्या बनता है? बहुत ध्यान से देख लेना, इधर मैं इधर बता रहा हूँ CONH2 एंड इधर भी क्या बनेगा? CONH2 बनेगा। इसे क्या कहते हैं? थैलेमाइड।
बट इधर स्ट्रॉन्ग हीटिंग लिखा है बच्चों, क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग में इधर से फिर NH3 अमोनिया जाएगा, इधर से NH2, इधर से H, NH3 चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, तो आप इधर कह सकते हो CO, इधर थैलीमाइड मिलेगा आपको, थैलीमाइड। तो ये हमारा आंसर आ गया थैलीमाइड। ओके, गैब्रियल थैलीमाइड मेथड पता है ना, उसमें ये यूज करते हैं, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने बनाया था थैलेमाइड, थैलीमाइड दोनों। टेक्सचुअल क्वेश्चंस है, क्लियर, बहुत इजी है, तो आंसर आएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट, इट मीन्स उसके ऊपर H+ लगाना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। तो देखते हैं CH3OH, तो इधर इसके पास लोन पेयर है, इधर इसके पास क्या है, लोन पेयर है। ओके, अभी CH3 है, इसको प्रोटोनेट करना है तो कर सकते हैं इधर, बट इधर आप देख सकते हो ऑप्शन में फिनाइल है, तो फिनाइल मीन्स व्हाट, बेंजीन रिंग। फिनाइल मीन्स क्या, बेंजीन। तो आपको पता है उसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है, उसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस। तो इसीलिए उसका प्रोटोनेशन करना डिफिकल्ट है। मोस्ट डिफिकल्ट आपको किस में लगेगा, आप कह सकते हो पीएच में, क्योंकि और दूसरी तरीके से भी फाइंड कर सकते हो, CH3 डोनेटिंग है बराबर, H तो कुछ नहीं है, ये भी CH3 डोनेटिंग है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली डोनेट कर देगा। इट मीन्स H+ आराम से इधर अटैच हो सकता है, H+ आराम से इधर अटैच हो सकता है। ओके, इसमें भी हो सकता है, बट ये पीएच क्या है, वो अपना ये इसको इसकी ओर खींचेगा, क्लियर। तो ये इसमें बहुत डिफिकल्ट है, याद रखना है, ड्यू टू रेजोनेंस कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3 करेक्ट ऑप्शन इज, तो इसके लिए आपको पता है कैसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, -dN2/dt इज इक्वल टू -1/3 dH2/dt इज इक्वल टू 1/2 dNH3/dt। ये होता है, ठीक है। हमें क्या पूछा है, किसके बीच में रिलेशन दिया है, N2 and NH3। तो अभी N2 and NH3 ये है हमारा NH3, ये है हमारा N2, उनको साइड में लिख देता हूं, -dN2/dt इज इक्वल टू क्या आता है, 1/2 dNH3/dt। ओके, ऐसा कौन सा ऑप्शन है अपना, बी ऑप्शन है, क्लियर। तो ये हमारा आंसर है, बहुत आसान है बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो इन विच केस द चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव, चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव, पहला ऑप्शन है एक्सपांशन ऑफ गैस, तो गैस एक्सपांशन होता है तो एंट्रोपी तो इंक्रीज होता है, तो ग्रेटर देन 0। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, उसमें भी एंट्रोपी इंक्रीज होता है, ΔH गैस टू H2 गैसेस, यस, इसमें HH अलग थे, भी कंबाइन हो गए, HH हो गया, इट मीन्स उनकी एंट्रोपी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो आंसर आएगा सी। इवेपोरेशन ऑफ वाटर में भी एंट्रोपी तो इंक्रीज होगा ही, आंसर आएगा सी। देखते हैं नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइन। बच्चों, मैंने बेसिसिटी ऑफ अमाइन का वीडियो बनाया हुआ है, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड है, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड, उसके लिए मैंने आपको बोला था 213 याद रखना है 213। तो पहले CH3 ट्वाइस, फिर CH3, फिर CH3 थ्राइस, तो ये हमारा आंसर आएगा। ये आपको याद ही रखना है, मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में समझाया, बेसिसिटी ऑफ एमाइन मेरे वीडियो में जाके देख लेना, डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर द सेल रिएक्शन एक सेल दिया गया है, उसका E0 सेल ये है, तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ द सेल रिएक्शन इज, मीन्स डेल्टा जी फाइंड करना है, डेल्टा G0 इज इक्वल टू क्या आता है, -NF E0 सेल। तो अभी आप देख सकते हो Fe+3 से Fe+2 बन रहा है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, इधर I- से I2 है, तो इधर 2 रखने जरूरी है, इट मीन्स ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज है, बट इधर 2 दिए गए हैं, 2 दिए गए, इट मीन्स ये पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। समझ में आया ना बच्चों, Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe+2, ओके। एंड I- क्या कर रहा है, I2 बना के एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे रहा है, अभी 2 रख रहा है,
अभी उन्होंने क्या लिखा है, I2 बैलेंस करने के लिए इसको भी 2 लिखा है, इसको भी 2, तो इसको भी 2 किया हमने एंड 2 इधर। क्लियर? दैट मीन्स चेंज इन इलेक्ट्रॉन क्या आया, 2 आया। चेंज इन इलेक्ट्रॉन अगर हम देखने गए तो आप आराम से कह सकते हो चेंज इन इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, 2 आएगा, -2। एफ क्या होता है, 96500। ई नॉट सेल क्या होता है आपको पता है, वो होता है 0.24 वोल्ट। ओके, तो इसको आप सॉल्व करो, तो आपको आंसर मिलेगा -46.32 किलो जूल पर मोल। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा। इट मीन्स द डी इज अवर आंसर। इजी है, एकदम बेसिक है, आप आराम से इसे कर सकते हो। क्लियर? ओके, बहुत आसान है, तो इसमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the correct electronic configuration of the K4FeCN6 based on crystal field theory? K4FeCN6 Fe, तो Cn कैसा ऐसा होगा, Fe में एक कैसा लिगेंड होगा, ऑक्टाहेड्रल है, तो नीचे क्या आएगा, T2G आएगा एंड ऊपर क्या आएगा, Eg आएगा, ये पता है। क्लियर? T2G Eg पता है। अभी Cn कैसा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, Cn है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो 6 के 6 एक में ही आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो अपना ये बनेगा T2G6 एंड Eg0। बहुत ही आसान है बच्चों, अब समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपाउंड इज फॉर्म बाय द कैटायन C एंड A। एन आयन, तो एन आयन A है, इस टू C कैटायन है, एन आयन फॉर्म HCP क्लोज पैकिंग। अगर इसको N अज्यूम कर लेते हैं तो एंड द कैटायन ऑक्यूपाई 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स N जितने होते हैं 75% को 3/4 कहते हैं। क्लियर? कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं 3/4 मीन 75%। अभी ये 4 सामने गया तो क्या बना अपना फॉर्मूला, A4C3, इट मीन C3A4, 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 ये रहा अपना आंसर। बहुत इजी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The method used to remove temporary hardness of water, हाइड्रोजन एंड उसमें रहा वाटर, तो उसमें देखोगे तो पहला ही ऑप्शन दिया है क्लार्क्स मेथड, तो वही टेम्पररी हार्डनेस, तो ये तो अब परमानेंट हार्डनेस वाली मेथड है, काल्गन सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, पता है ना ये सब। ओके, तो अपना आंसर आएगा क्लार्क्स मेथड। इट मींस द मैंगेनेट एंड परमैंगेनेट आयंस आर टेट्राहेड्रल। ये आपको डी ब्लॉक एलिमेंट में याद रखना पड़ेगा। ओके, ये आपको डी ब्लॉक एलिमेंट पे याद रखना पड़ेगा कि भाई परमैंगेनेट एंड मैंगेनेट टेट्राहेड्रल क्यों है, तो उसका रीजन ये है द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ओवरलैप p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद d ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज। ये इसका ऑप्शन है, ऑलरेडी आप देखोगे तो लिखा हुआ है, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, थियोरेटिकल है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Among the following, the reaction that proceed through an electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction is कौन सा होगा, तो Cl2 बेंजीन, तो अभी Cl इधर, तो इधर से H जा रहा है, इधर AlCl3 के साथ क्या होगा, AlCl3 प्लस Cl2, ये क्या होगा AlCl4 माइनस Cl प्लस, तो Cl प्लस अटैच हो रहा है, इट मीन्स वो इलेक्ट्रोफाइल है, एंड यहाँ पर तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, तो ए तो है ही। दूसरा देखते हैं, इधर तो OH माइनस है एंड बराबर H प्लस Cl माइनस है, इधर CH2 प्लस है, ये तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो गया, इधर भी प्लस है, इधर माइनस है, तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, ओके, तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा। इसमें देखते हैं Cl2, ये तो फिर क्या हो गया, अपना बॉन्ड टूट गया, इट मीन्स एडिशन रिएक्शन हो गया, तो ये तो इसमें नहीं आ सकता, इट मीन्स आ गया अपना आंसर फर्स्ट। बहुत इजी। मैच द ज़ेनॉन कंपाउंड इन कॉलम 1 एंड 2, तो HCF4 का शेप क्या है, HCF4 का शेप क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। बच्चों पता होना चाहिए, मैंने हाइब्रिडाइजेशन सिखाया है, उसमें शेप भी सिखाया है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर से फाइंड कर सकते हो। HCF6
आपको पता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। XeO-F4 सारे गिवन है, स्क्वायर पिरामिडल, एंड XeO3 क्या होता है, पिरामिडल होता है। देखने जाए ये ऑप्शन सही बैठ रहा है, आंसर आएगा ए। Which of the following is incorrect statement? Incorrect. SiCl4 is easily hydrolyzed. Yes, इसका रिएक्शन देखा है हमने। SiCl, Cl H2O बनाता है, H2O SiOH, OH बना देता है, सही है। GX4 is more stable than GX2. Yes, 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 ये भी सही है, ठीक है। थियोरेटिकल क्वेश्चन है। SnF4 is ionic in nature. Yes, ये भी सही है। PbF4 is covalent. No, 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 no. PbF4 भी क्या होगा, हमारा आयनिक है बच्चों। क्या है, आयनिक इन नेचर, वो भी हमारा आयनिक इन नेचर। PbF4 एंड SnF4 दोनों आयनिक है। क्लियर? ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन अल्कीन A on reaction with O3 and ZnH2O gives propanol and ethanol. प्रोपेनॉन एंड इथेनॉल। तो अभी ये ओजोनोलिसिस वाला रिएक्शन लिख रहा है मेरे को, अल्कीन लिख देते हैं। तो अल्कीन CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, देख लेना ध्यान से। अभी O3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा, ये भी रिएक्शन हमने देखा हुआ है। इधर O आ जाएगा, इधर CH2 तो है ही, इधर भी O, इधर भी O, फिर यहाँ से एक अलग हो जाएगा, यहाँ से एक अलग हो जाएगा। बच्चों पता है ना इतना तो इतना तो क्या किया था आपने, CH3CO CH3, तो ये क्या मिला, प्रोपेनॉन मिला, एंड CH3CHO इथेनॉल मिला। ओके, इक्विमोलर रेशियो बराबर है, सही है। अभी एडिशन ऑफ HCl टू दिस अल्कीन A गिव्स B। अभी इसमें HCl ऐड करेंगे तो फिर मार्कोनिको लगेगा ना, ये C के पास भाई साहब Cl जाने वाला है। क्लियर? तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, अभी इधर बनाता हूं मैं, CH3C, इधर Cl, इधर भी CH3 एंड इधर CH2 CH3। तो क्या बना 1 2 3 4 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये बन गया। बहुत आसान है। क्लियर? बट ये पता होना चाहिए ओजोनोलिसिस ये भी टेक्सचुअल रिएक्शन है बच्चों, ये भी टेक्सचुअल रिएक्शन है, तो आपको कोई टेंशन नहीं आएगा इधर ऑर्गेनिक में। ये JEE से तो आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। फिर देखते हैं विच मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल। ये बच्चों थोड़ा ट्रिकी है। तो चार्जेस प्रेजेंट ऑन द कोलोइड, कोलोइड के जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, जो कॉमन आयन होता है उसके एड्सॉर्प्शन होने से होता है। बहुत ध्यान से देख लेना, समझ लेना है। जो कॉलोइड के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है वो उसके कॉमन आयन जो होता है वो डिस्पर्जन मीडियम में, क्लियर, तो उसका एड्सॉर्प्शन हो जाने से होता है। अभी आप देखो, आप पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं अपने, AgNO3 है एंड Ki है। तो मैंने बोला था अभी रिएक्शन लिखे तो क्या बनेगा, AgNO3 प्लस Ki गिव्स क्या बनता है, AgI प्लस KNO3। मिलीमोल फाइंड करो, 50 इंटू 1 बराबर, तो ये कितने मिलीमोल बने, 50 मिलीमोल बना। ये कितना मिल रहा है, 100 मिलीमोल मिल रहा है, तो ये तो 50 मिलेगा। तो ये 50 इसके साथ रिएक्ट करेंगे, AgNO3 कंज्यूम हो जाएगा, बट Ki तो बचेगा ना सॉल्यूशन के अंदर। Ki के 50 मिलीमोल तो बचेंगे ना, इधर क्या बचेगा, AgI भी बचेगा एंड Ki भी बचेगा। क्लियर? तो इधर से क्या होगा, ओके, तो फिर आप कह सकते हो कि भाई ऑप्शन ए देखे हम तो 50 ml तो यस ये बच रहा है, Ki बच रहा है। क्लियर? सो अभी कह सकते हो कि I माइनस जो है वो AgI के फॉर्मेशन में जाएंगे एंड उसके बाद जो बचेंगे इधर तो K प्लस I माइनस तो बचने वाले ही है, तो I माइनस को क्या AgI एड्सॉर्ब कर पाएगा, AgI इसको क्या कर पाएगा, एड्सॉर्ब कर पाएगा। तो भाई ये ऑप्शन अपना सही बैठ रहा है, इसलिए आंसर आएगा 1, इसलिए आंसर आएगा 1। ये पता होना चाहिए नेगेटिवली चार्ज कोलोइड सॉल है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बेसिक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग,
अभी प्रोसेस, अभी प्योर नाइट्रोजन है, प्योर नाइट्रोजन, तो प्योर नाइट्रोजन आपको कहाँ से मिलेगा? तो सोडियम एजाइड में से और बेरियम एजाइड में, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन में दिया गया है प्योर नाइट्रोजन। हेबर प्रोसेस किसके लिए होता है? अमोनिया के लिए होता है। यस और नो? ओके। फिर कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके लिए होता है? सल्फ्यूरिक एसिड के लिए होता है, ये भी पता है। एंड डेकन्स प्रोसेस किसके लिए होता है? क्लोरीन के लिए होता है। ये सब देखने जाए तो आंसर आता है सी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर एन अल्कलाइन अर्थ मेटल एज द कोफैक्टर एम इज। थियोरेटिकल क्वेश्चन, Mg, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम थियोरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अमॉन्ग द फॉलोइंग द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज। ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है एंड यू हैव टू रिमेंबर इट इज द पेनिसिलिन जी, नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन जी, याद रखना, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबल? इज नॉट स्टेबल। तो GeCl6 माइनस, SnOH6 माइनस, SiCl6 माइनस एंड SiF6 माइनस। क्लियर? तो कौन सी स्टेबल नहीं होगी? अब बताइए मुझे कौन सी स्टेबल नहीं होगी। थोड़ा लॉजिक लगाइए इसमें तो आपको आराम से पता चल जाएगा। तो जो SI होगा, SI, तो उसके पास आपको पता है d ऑर्बिटल नहीं है। अपना SI जो है वो, एक मिनट पहले देख लेते हैं, 14। ओके, तो 14 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो इसमें भी d ऑर्बिटल तो है बच्चों, 3d ऑर्बिटल तो इसमें भी है एंड SI वाला 3d इसमें भी है। क्लियर? तो स्टेबल कौन नहीं रहेगा? Cl जो है एंड F है। अभी ये दोनों ऑप्शन हुए, ठीक है, टॉप टू बॉटम आपको पता है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर वाला मैटर देखते थे। इधर SI का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +4 आया, -6 इधर भी आप SI का ऑक्सीडेशन नंबर देख सकते हो, +4 है। तो जनरली SI का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखने जाओगे तो वो +2 होता है। क्या होता है? +2 होता है, ठीक है। तो इधर आप कह सकते हो, इधर अगर 4 होता तो +2, तो वो स्टेबल होता है। ये भी आपको पता है स्टेबल है, ठीक है। तो आंसर आएगा SiCl6 माइनस, ये अनस्टेबल रहेगा। तो अभी क्वेश्चन होगा कि सर SiF6 माइनस नहीं आएगा, तो उसकी स्ट्रेंथ देखे FClBrI, ठीक है। तो ये इन सब में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू Cl। क्लियर? तो जितना लिगेंड स्ट्रॉन्ग उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो फिर ये Cl वाला ऑप्शन आएगा। क्लियर? ओके, तो याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन CaOH ट्वाइस। CaOH ट्वाइस की pH दिया गया है 9, तो बेस है तो pOH फाइंड कर देते हैं। 14 - 9 तो आया 5। CaOH ट्वाइस है बच्चों, ध्यान से देख लेना। CaOH ट्वाइस तो क्या बनता है? Ca+2 एंड 2H- बनता है। अभी pOH, अभी क्या फाइंड करना है? KSP फाइंड करना है, बहुत ध्यान से देख लेना। अभी pOH इज इक्वल टू क्या होगा? -log OH-, तो OH- इज इक्वल टू क्या आएगा? -anti-log ऑफ pOH। इट मीन्स 10⁻⁻5 आएगा OH- कॉन्सेंट्रेशन। तो ये 2OH- मिला के 10⁻⁻5 आता है। तो ये 10⁻⁻5 डिवाइड बाय 2 आएगा। सिंपल है, ये 2 मोल थे, वो मिला के 10⁻⁻5, तो ये 10⁻⁻5 डिवाइड बाय 2 आएगा। अभी CaOH ट्वाइस के लिए KSP कैसे लिख सकते हैं? KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca+2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- का स्क्वायर। तो ये आएगा 10⁻⁵ डिवाइड बाय 2 एंड हियर 10⁻⁵ square. If you will solve this, you will get here 0.5 into 10⁻⁻15. So here KSP will be 0.5 into 10⁻⁻15 equilibrium. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, ये पता चला 10⁻⁵ डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये 2 मोल थे, इधर 1 ही मोल था, तो उससे आधा ही होगा। पता है ना, जैसे H2SO4 करते थे
तो 2H प्लस एंड SO4 माइनस 2 होता था, तो 1 थे तो इसके 2 मोल लिखते थे और इसके 1 मोल, तो ये इससे तो आधा ही हुआ ना, तो डिवाइड बाय 2 ऐसे लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? इज इट क्लियर? तो ये है, इट मीन्स आप कह सकते हो JEE से नीट का लेवल बहुत ईजी होता है। खाली आप NCERT को कंसेप्ट के साथ फॉलो करते हो तो आराम से आप केमिस्ट्री के 45 में से 45 क्वेश्चन सही कर सकते हो बच्चों। उसमें थोड़ा टेक्स्ट बुक में आपको इनऑर्गेनिक पार्ट जो है वो आपको करना होगा, इनऑर्गेनिक में टेक्सचुअल प्रैक्टिस ही चाहिए। GOC में से हमने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस आए बच्चों। ठीक है, तो ये था हमारा नीट का पेपर, आपको समझ में आ गया? इज इट क्लियर? सब कुछ क्लियर है बच्चों? ओके, तो ये सारे हमने 45 क्वेश्चंस नीट के देखे एंड नीट 2019 के पेपर का पोस्टमार्टम कर दिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पेपर को लेके मैं आता रहूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।